Assalamu alaikum, my dear students. We are getting ready for session number 44, and a session which is focused on not only your individual learning, but how to create and how to become and how to manage an organization which should be focused on learning. So in other words, learning becomes a prerequisite for creating, for acquiring, for generating knowledge. और knowledge के बारे में तो फिर हमने पिछले सेशन में लर्न किया कि this is probably the only source of competitive advantage in 21st century. And it will be very important what is the capacity, what is the capability, what is the competency of an organization to learn, to adapt, to change according to the global market conditions. हमने पिछले सेशन में ये भी लर्न किया कि learning is a community based process. Knowledge increases in its stock, flows at a faster speed when people interested, communities interested, groups interested to work together a bit more in a social way. In other words, let's bring social life in the organizations. Let's bring social values in the markets. Let's deal with customers of the organization through a relationship lens, through a social lens. Community of practice, community of interest, issues driven community. आप कुछ भी नाम दे लीजिए, learner focused, expertise focused, locator focused, कुछ भी नाम दे लीजिए. Importance is that how in a social perspective knowledge is shared, knowledge is acquired, knowledge is generated, knowledge is created, and then knowledge is applied and deployed and employed for creating new products, new services, new ideas, new systems, which will bring performance and productivity at the individual level as well as at the organizational level. अच्छा, फिर मैंने लास्ट सेशन की बिल्कुल लास्ट स्लाइड में बात मुकम्मल नहीं होगी कि अगर हम उसको अपने पाकिस्तान के फोकस में ना देखें. ये मॉडल्स ठीक है वेस्ट में डेवलप हुए, ईस्ट और वेस्ट दोनों की ट्रेडिशंस और वैल्यूज को लर्निंग और नॉलेज के पर्सपेक्टिव में ब्लेंड किया जा रहा है. प्रोफेसर पीटर संजय, वी विल नो मोर अबाउट हिम. वी विल बी टॉकिंग अबाउट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट. We have already talked about knowledge creating organization concept of Nonaka East. Peter Sanjay, Professor Peter Sanjay of MIT from West. लेकिन सवाल ये पैदा होता है, being in Pakistan, हमारे तो issues मुख्तलिफ हैं, problems मुख्तलिफ हैं, challenges मुख्तलिफ हैं, markets के dynamics मुख्तलिफ हैं. तो फिर knowledge को यहां पर आप कैसे एक्सप्लॉइट करें, कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे डिप्लॉय करें, उस पर्सपेक्टिव में मैंने चंद चीजें आपसे शेयर करनी है. उसमें से सिर्फ एक पर मैंने फोकस किया था लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड में. उसी को मैं फिर दोबारा देखना चाहूंगा कि व्हेन वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन वी हैव लैक ऑफ governance, capital, and other infrastructural weaknesses. So should we just sit down and complain? Not do anything? तो फिर नॉलेज मैनेजमेंट का क्या फायदा हुआ? इसलिए कि नॉलेज का ताल्लुक तो फिर आपके थिंकिंग अपरेटस से है, और आपका और मेरा थिंकिंग अपरेटस, मैंने आपसे पहले भी ये कहा, एंड आई रिपीट वंस अगेन, बीइंग इन पाकिस्तान, आपका और मेरा थिंकिंग apparatus, the brain, the mind, believe me, is no less than anyone in any country of the world. तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन मशीन, अब मैं प्रोडक्शन मशीन किसको कह रहा हूं? आपके ब्रेन को. उसकी प्रोसेसिंग स्पीड,
उसकी आउटपुट एंड आउटकम स्पीड, उसकी डिसीजन मेकिंग स्पीड, उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन मेकिंग स्पीड, डिसीजन मेकिंग स्पीड तो किसी से कम नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनोवेशन किसी से कम नहीं है। लेट्स यूज दैट. Let's try to see what are our issues and challenges. Being in Pakistan, what can we deliver on the basis of the knowledge and learning we have in the organizations? तो इस पर्सपेक्टिव में फिर हम शेयर करना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि आप अपनी एक्सपर्टीज को फिर इस एनवायरनमेंट में जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस, how to employ and deploy and how to manipulate what you learn in the class, what you learn at home, what you learn in the organization, so that you can deliver in the markets of Pakistan. मसलन मैंने आपसे लास्ट सेशन में शेयर किया लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन. सो इफ दैट इज द केस, बिजली नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ सप्लाई चेन and what kind of market sectors you can tap. Let's look at the second issue, lack of poor health care. आप इससे डिसएग्री तो नहीं करेंगे ना? उसकी कुछ भी रीजंस हो सकती हैं कि मेडिकल डॉक्टर्स रूरल एरियाज में जाना नहीं चाहते, कोई भी रीजन हो सकती है. रूरल एरियाज में डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है. लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों का इनकम लेवल इस लेवल का नहीं है कि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट की फीस दे सकें. Now you being a knowledge manager, you being a knowledge professional, what can be done? Please explore the area of telehealth. इसलिए कि आप अब इससे तो एग्री करेंगे कि may it be wireless connectivity, may it be internet connectivity, क्या वो अवेलेबल है या नहीं in all the villages, in all the towns, in all the kasbas, in all the tehseels of Pakistan? Mostly, yes. And it's coming more. If that is the case, please explore what is telehealth. How can you as a knowledge manager, a graduate, knowing what knowledge is, and knowledge in different domains and different disciplines, connected with the world through wireless or wired connectivity, exploiting the decision-making power what you have, looking at telehealth, providing service at the local level. And of course, when you provide service, you will charge for that value which you are providing as a value. Money will follow the idea. मैं आपसे सिर्फ आइडियाज शेयर कर रहा हूं. इस आइडिया को आपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कैसे करना है, नॉलेज को एक्शन में कैसे लेकर आना है, टू क्रिएट वैल्यू एंड टू क्रिएट वेल्थ, दैट आई लीव अप टू यू. ओके, लैक ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग, उसका देखिए सोल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि आप ये कहेंगे जी ये जो बॉटल्ड वाटर जो अवेलेबल है वो भी तकरीबन हर जगह पर अवेलेबल है, आप कहेंगे जी ये तो महंगा है. यस, आई एग्री विद यू. एक्सप्लोर हाउ कैन यू मेक वाटर फिल्टर्स और हाउ कैन यू ब्रिंग वाटर फिल्टर्स, एंड इन दोज एरियाज स्पेशली where the quality of water is not very good, what kind of filter can be used? Could it be paper filter? Could it be paper and sand mixed? Could it be nano based? You look into the technology and see how can a cheaper filter be provided to raise the health level and to make sure that you have the drinking water available. And it's a business. देखिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में तो नॉलेज बेस्ड आइडिया कन्वर्टेड इनटू ए सर्विस और ए प्रोडक्ट एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर. कस्टमर इन द विलेज, कस्टमर इन तहसील, कस्टमर इन द कैपिटल सिटी. तो ये जो लैकनेस है, ये जो स्लैकनेस है, ये जो पाकिस्तान के हमारे अपने, अच्छा पाकिस्तान ही नहीं, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन इश्यूज हैं. Let's try to live and let's try to sustain in a world which sometimes you feel is constrained. But we are trying to learn
how to develop an attitude of abundance. कुछ चीजें यस उनमें कमी है, कुछ चीजें हमारे पास वाफर मिकदार में हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशल कल्चर, रिलेशनशिप कल्चर. मुझे बताने की जरूरत है आपको कि हमारे यहां फैमिली लेवल पर, दोस्तों के यहां, मार्केट के अंदर उसकी वाफर मिकदार है. यू गो टू वेस्ट एंड देन यू विल रियलाइज कि ये जो चाय का कप आपको आपके दोस्त मुफ्त पिलाते हैं, वहां पर आपको जाके पता चलेगा कि ये मुफ्त चाय का कप नहीं मिलता. ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं होते. यू एंड योर फ्रेंड, फादर एंड द डॉटर, brother and the sister, everybody has money. Nobody wants to spend a single penny on your cup of tea because they do not value of relationship. यहां तो आप एक चाय का कप क्या खाना मुफ्त खिला देंगे. It's a very common practice. So let us try to base on certain decisions which we already have, and let's try to solve using knowledge, using learning, some of those areas where there is lackness. Okay, lack of resources for traveler. एक और area है जो मैं आपको mention कर रहा हूं. Lack of resources for traveler. Traveling from villages to cities, from cities to the capital cities. Can you manage? Now think about it. Can you manage an organized carpool? सोचें इसके बारे में. Take a car on rent. Make an advertisement that from this time to this time, how much time it takes to go from city A to city B. How much does it cost? What is your profit? Make a business model. Let the service be available. Organized carpool. And then, when somebody is coming from a village to a city, can you get him connected with the people in the hotel chain? Because he has to stay overnight in the big city. So, see, lack of resources of traveling, building a knowledge-based service in the travel industry, how can you do it at a small level? एक कार, एक वैन, फिर 2, फिर 4, फिर 10. And let me add, while they are traveling, can you provide them some knowledge-based services? एंटरटेनमेंट तो देखिए सभी लोग वक्त जाया करने के लिए मूवी दिखा देते हैं, लेकिन उसी वक्त जो ट्रैवलिंग के अंदर कैन यू ऐड सम नॉलेज बेस्ड सर्विसेज? कैन यू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ सम कंपनीज in your city, in your village, or the city or the village he is going to? And then, putting it together, can you connect people together? Not only in the country, but around the globe. मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट नजर आई मलेशिया में, और उन्होंने पता है स्लोगन क्या रखा हुआ है? हलाल ट्रैवल. मैंने कहा भाई ये हलाल फूड तो सुना था, हलाल बिजनेस भी सुना था, ये हलाल ट्रैवल से क्या मुराद है? और उन्होंने फिर उसने कैटेगराइज किया हुआ है कि हम किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल में, किस किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं होटल में, किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वाइल ऑन लैंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड. देयर इज अ होल लिस्ट. क्वेश्चन इज यू कम अप विद द आइडिया. और फिर पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल सेक्टर के अंदर there are a lot of opportunities in the northern areas, in the Sindh, in frontier province, in Balochistan, in Punjab. But first you need to get the knowledge so that you can make a product or a package. आखिरी बात करता हूं मैं, lack of education. आप कहते हैं जी देखिए छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, हमें MBA और BBA का लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास नॉलेज नहीं मिलता. क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ई लर्निंग के पर्सपेक्टिव में इस बैरियर को क्रॉस नहीं किया? सो ई लर्निंग इज वन ऑफ द सोल्यूशन. नाउ दिस ई लर्निंग, हाउ बैक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हाउ कैन यू यूज ई लर्निंग एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एजुकेशन नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स बट मे बी टू द organization managers
executives, maybe to the bank managers, maybe to the housewives and the working women, maybe to the people living in village. They want to know the market rates. They want to know what's going on in the big cities. Okay, can you provide agriculture-based information, agriculture-based marketing, e-learning? ये तो एक प्लेटफॉर्म है, और मैंने देखिए यहां लफ्ज इस्तेमाल किया है सिम्प्यूटर. मालूम कीजिए ये क्या है. इट्स अ हैंड हेल्ड डिवाइस, वेरी चीप, बीइंग यूज्ड इन आवर नेबरिंग कंट्री. इट्स अ मोबाइल कंप्यूटर, वेरी चीप. वैसे तो आप कहेंगे जी अब मोबाइल फोन पे बहुत सारी सर्विसेज आ रही हैं. यस, बट आई एम टॉकिंग अ गैजेट, चीप वन, मे बी विद ए लोकल लैंग्वेज इंटरफेस. उर्दू में, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में, पंजाबी में. कैन यू हैव इंटरफेस? इसलिए कि आप बीबीए और एमबीए को तो फोकस नहीं कर रहे ना. ये तो आपका बिजनेस मॉडल है. You're focusing on those people who can read Urdu language or Sindhi language. So my dear students, my dear knowledge professional, you have to develop your model and you have to learn. So speaking of learning then, let me bring you back from Pakistan to the globe now. Learning at the local level, learning at the global level, that speaking of learning, and we're not talking about machine learning, ये आईटी और कंप्यूटर साइंस में पूरा एक एरिया है, हाउ टू मेक मशीन्स लर्न. लेकिन नेचुरली वो भी डिसिप्लिन ह्यूमन लर्निंग की बेस पर ही डेवलप किया गया है. न्यूरल नेटवर्क्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, हाउ यू मेक मशीन्स लर्न. स्पीकिंग ऑफ ह्यूमन लर्निंग, वी लर्न थ्रू 3 different ways. Number 1, learning by experience. But of course, it requires time, it requires your talent. And given the time, you will learn. Given the time, you will be an experienced person. Shortcut नहीं है. ये time आपको और अपने talent को आपको use करना है. Number 2, learning by example. Can someone become a role model? Can someone show you how to do things? Can someone be your mentor? And that learning not only goes to your mind, it goes to your heart. Learning by example. Come on, I'll show you how to write this code. Come on, I'll show you how to operate this machine. Come on, I'll show you how to make a refined sugar. Come on, I'll show you how to convert this raw sugar into sugar cube. And you sell the sugar cube. Value addition. Come on, I'll show you how to convert the sugar packed in little packets to be sold not only in 5-star hotel. 5-star hotel में तो पहले ही वो पैकेट मिलते हैं. एयरलाइंस पर पहले ही वो मिलते हैं. Can you find an airline where you can supply these packets of sugar? You're adding value. So if someone can show you, learning by example, try to please learn and make a business out of it. और तीसरी बात, human learning के perspective में, learning by discovery. You discover. It could be by chance, it could be by unintentional learning, it could be intentional learning, but it is undirected approach in which humans explore a problem area with no advanced knowledge that what will happen to them. And risk-taking, courageous problem solving, not knowing what will happen, जिसको बिजनेस में हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी. नहीं मालूम था, जब पोस्ट ऑफिस का जमाना था, नहीं मालूम था कि ये जो पैकेट्स ओवरनाइट डिलीवरी का बिजनेस है, ये लोग एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं. लोग कहेंगे ये तो पोस्ट ऑफिस के करने का काम है. बट इट हैपेंड. इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर बिजनेस नाउ. कभी आपने सुना कि लोग मैंगो और केक कराची से लाहौर और कराची से लंदन और लाहौर से न्यूयॉर्क भेजते हैं? हमने सुना तो नहीं था, हो रहा है. एक स्टेप और आगे जाता हूं. कहते थे जी स्टेट बैंक से आपको परमिशन लेनी होगी अगर आपने किताबें मंगवानी हैं या कोई टॉयज मंगवाने हैं या कोई लर्निंग मटेरियल आपने बाहर से इंपोर्ट करना है. Here we have a company talking to
entrepreneurs, people like you, telling them that, all right, up to a certain limit, please tell us. We will bring the stuff, the company you want, delivered to your doorstep, and you pay when it is delivered to you. The world is really becoming a globe. You have to discover your own word. I think discovery क्या होती है? It's a knowledge based. It's an idea based. So learning capacity or learning capability is attached with human, is attached with you, is attached with individuals. That is why we say, and if you remember in the beginning I said, it's your personal capital. How can we exploit for the organizational capital? That is what knowledge management is. तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए और कंटिन्यूस चेंज के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इसलिए कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूस चेंज is required to stay competitive, to stay ahead of time, to stay futuristic, is required learning. Learning organization. Organizational learning. मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम, का आइडिया, का मॉडल फ्लोट किया प्रोफेसर पीटर सैंजे ने. अभी उसकी भी हम बात करते हैं. Organizational learning was already there, and this concept people knew that when you improve your process, quality management में जैसे हम लर्न करते हैं, when you improve your structure, when you improve your work design, when you employ change management strategies, in fact, the organization is learning from the market, is learning from the customer, is learning from the globe, and then changing technology, changing process, changing work design, changing delivery channel, so that they can satisfy and delight their customers. So, for learning organization क्या हुआ? What is this concept then? Are you ready then? Let's learn what is the concept of learning organization. अच्छा, मैं ये बात आपको शुरू में ही अर्ज कर देता हूं. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल एक आइडियल मॉडल है. आप कहेंगे जी फिर ये रियल तो ना हुआ, लेकिन देखिए, it's an ideal. You work for it, you strive for it, you look towards it, you keep on trying to achieve it. It may take a little longer, but the question is, if you don't do it, there is no chance and there is no guarantee that you will stay successful. We want to stay successful. At the individual level, we said, please learn and lifelong learn. मैंने आपसे शेयर किया था ना, a lady at the age of 95 getting a bachelor degree, a Pakistani at the age of 96. मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी. उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने पीएचडी कर ली, उन्होंने कहा जी मैंने रिसर्च कर ली, थीसिस लिख लिया, अब थीसिस का वाइवा था, और few days before the thesis viva, Mian ji, this senior person, 96 years old, Pakistani, studying in UK, he had a heart attack. He was hospitalized. उन्होंने डॉक्टरों से कहा, when there is a will, my dear students, you will find a way. उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि please, I have a viva on such and such date. Make sure that I stand up and I face the day. And believe me, he did. तो इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल लेवल पर जब इतना इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन which works to facilitate the lifelong learning attitude and personal development attitude of all its workers. नॉलेज वर्कर्स के बारे में तो हम ये कहते हैं कि ये तो अपने कैरियर का खुद ही ख्याल रखते हैं. याद है हम जब डिस्कस कर रहे थे हाउ टू मैनेज नॉलेज वर्कर्स, हमने कहा था कि दे डोंट वेट फॉर द एचआर मैनेजर टू टेल देम what discipline to learn and how to raise their competencies and how to move on in their career.
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन खुद उनकी डेवलपमेंट का, कैरियर डेवलपमेंट का, पर्सनल डेवलपमेंट का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेवलपमेंट का, whatever competencies and skills are required, organization will give them. They will be in business. Organization will be in business. While continually transforming itself, yani organization, and to respond to changing demands and needs of the local market as well as global market. देखिए, मार्केट की डिमांड्स चेंज हो रही हैं और 21st सेंचुरी में तो उसके चेंज होने का पेस और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो गई है. तो प्लीज लेट अस रिस्पॉन्ड, लेट अस लिसन, let us process the information to generate and create knowledge and be valuable and value adding to the organization. Learning organization then is an organization which is continually expanding its capacity. आप खुद मुझे बताइए, आप जब एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सिस्टम, एक नया प्रोसेस लर्न करते हैं तो आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क, आपकी परफॉर्मेंस टू अचीव द गोल एक्सपैंड करती है या नहीं? इफ इट्स ट्रू विद यू माय डियर स्टूडेंट, देन इट्स ट्रू विद द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हम एक किसी चार दीवारी का नाम तो नहीं समझते. अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है. इसमें रोबोट्स नहीं है, इसमें इंसान है जो दिल रखते हैं, जो दिमाग रखते हैं, जो जज्बे और जुस्तजू रखते हैं. तो फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फिर वो हुई कि विच इज कंटिन्यूअली एक्सपैंडिंग इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट इट्स फ्यूचर. एंड फ्यूचर इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर. स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना आप, अपॉर्चुनिटीज कहां होती हैं? फ्यूचर में. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद. गदन का मतलब है अरबी में टुमारो. फाइंड आउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज टुमारो and get ready. Get ready for it. कुरान भी यही कहता है, वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद. Everybody should look into it. What does he have for tomorrow? Does he have knowledge of the markets of tomorrow? Does he have knowledge of the processes of tomorrow? Does he have knowledge of the demands of tomorrow? Does he have knowledge that how he or she acted responsibly while living in this world or the world hereafter? So opportunities are always in future. So how you create your future will depend upon you today. Same is with the organization. और प्रोफेसर पीटर संजय का कहना यह है, अभी मैं आपसे शेयर करता हूं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन लर्न नहीं करेगी जिसके अफराद लर्न नहीं करेंगे. सर्वाइवल और अडॉप्टिव लर्निंग इज गुड. Learning only to pass the course is good. You'll get a grade. Survival है ना, बस जी हमने सिर्फ कोर्स को पास करना है. कितना ग्रेड चाहिए? जीपीए 2.0, 2.5. Okay, I'll get it. That's adaptive learning. But generative learning, what's in it for me? What's new I can deliver? What is so special about me? What is my brand? और आप तो देखिए हर तरफ जमाना माई का है. माई म्यूजिक, माई डॉक्यूमेंट्स, माई मीडिया है ना. ये फाइल्स, ये फोल्डर्स आप स्टोर करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे. बुकमार्क, माई बुकमार्क्स. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट्स इन इट फॉर मी? जनरेटिव लर्निंग. आई विल लर्न एंड आई विल जनरेट बेटर वैल्यू, मॉडर्न वैल्यू, टुमारोज वैल्यू, बिकॉज इट विल एनहांस इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट. लेट्स टेक अ लुक क्लोजली. लर्निंग इंक्रीजेज योर नॉलेज. राइट हैंड साइड पे देखिए, लर्निंग इंक्रीजेज योर नॉलेज. नॉलेज विल इंप्रूव द प्रोसेस. अब मैं बात नहीं करता कौन सा प्रोसेस. इट कुड बी थिंकिंग प्रोसेस, कुड बी वर्किंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस, लिसनिंग प्रोसेस, व्हाटएवर प्रोसेस. लर्निंग इंप्रूव्स नॉलेज, नॉलेज इंप्रूव्स प्रोसेस, प्रोसेस विल गिव यू बेटर प्रोडक्ट. Product is sold in the market as a value. Is it a commodity? Is it a premium? Is it high in demand? Is it nobody want? मैंने कहा था ना, P1 कंप्यूटर, नॉलेज तो है ना, nobody wants. अब तो कंप्यूटर मोबाइल फोन पे आ गया. We want that kind of computer. We want those computers which can give us TV, which can give us internet, which can be email, I can access everything. Value. Value कैसे deliver होगा? Market place में भी और market space में भी. You can sell it on the internet. You can sell it
in the departmental store of Karachi, Lahore, Islamabad, or Sydney, London, and New York. And believe me, when customers value that product, they don't look what is the country of origin. Look at all those jeans and joggers and footballs and socks which are made in Pakistan. मेरा और आपका मुल्क, पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स बनकर सेल होते हैं. और वो मैन्युफैक्चरर जो सियालकोट से विड्रॉ कर गया था, नॉट मैन्युफैक्चरर, वो कस्टमर जो सियालकोट के मैन्युफैक्चरर से विड्रॉ कर गया था, फुटबॉल बनने बंद हो गए थे. We had the courage. Another company from Sialkot, they negotiated with him. Let's sit down. What are your demands? We will deliver you a better value. The contract has come back. So value is delivered. अच्छा, जब value deliver होगा, तो इसका मतलब ये है कि with the passage of time, then you will change in the product and process. कभी customer कहेगा, कभी technology की requirement होगी, कभी China दरमियान में आ जाएगा, but it will ask you to change the functions, to change the utilities of the product and process. अब कैसे होगा जी? You will learn. Once again, go back to the drawing board. Increase your knowledge, enhance your capacity. मैंने कहा था ना, हम हाथ से स्टिच करते थे. Okay, this was the technology. Here come a country in the SAARC region, जिन्होंने exactly उस टेक्नोलॉजी को मशीन से करने की स्किल डेवलप कर ली. कस्टमर वहां चला गया. So we learned. We said, all right, we will give you the similar. देखिए, लर्निंग और नॉलेज जब आप ऑर्गेनाइजेशन में उस स्टॉक को फ्लो के जरिए से प्रोडक्ट बनाकर सेल करेंगे, आई एम श्योर यू विल अट्रैक्ट द कस्टमर. कस्टमर तो वहां जाएगा जहां उसको बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा एट अ चीपर प्राइस. रिमेंबर, आई से चीपर प्रोडक्ट, चीपर इन कॉस्ट, faster in delivery, better in quality. That's the way to go. And that can only be done if we continuously keep on improving our thinking, our learning, our knowledge. This means learning organization would engage in single loop learning to improve the process. However, double loop learning is much more important. Learning organizations will involve double loop learning. क्या मतलब है इसका? When the error is detected and it is corrected, it involves the modifications of organization's objective. It involves the modifications of organization's policies, standards, routines. It asks for new decision making. So then, what is the difference between single loop learning and double loop learning? यही वो concept है जो प्रोफेसर पीटर सेंजर ने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया. इसको गौर से देखिए. जीरो लूप लर्निंग, इनपुट, कोई फीडबैक नहीं, कोई हम सुन नहीं रहे, कोई सोच नहीं रहे, अपने ऑपरेटर्स को यूज ही नहीं कर रहे. फर्स्ट लूप लर्निंग, सिंगल लूप लर्निंग, ऑलराइट, व्हाइल इन अ सिस्टमिक वे वी आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, वी आर इंप्रूविंग आवर प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज. वी आर मॉडिफाइंग आवर एक्शंस, जिसको हम ISO 9000 में, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहते हैं करेक्टिव एक्शन. सेकेंड लूप लर्निंग ये है कि नहीं, लेट्स सिट डाउन, लेट्स कॉल द community of practice. Let's call the community of interest. Let's sit down. Let us come up with new thinking. Let us modify our thinking. The thinking model, your mental model, my mental model, when it is changed, we see a new word. Our lens is changed. Our model is changed. We have a shift of mind. We don't see, अभी आगे चल के मैं बात करता हूं, we don't count and we don't see only the trees. नहीं, we see the forest. हमें एक सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नजर आ रहा है, नर्वस सिस्टम भी नजर आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नजर आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नजर आ रहा है, और हर एक का प्रोसेस पे नजर है हमारी. लेकिन हम ह्यूमन को या एनिमल को एज ए होल भी देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द काउ एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स ऑफ द काउ. और फिर हम इस अंडा देने वाली मुर्गी
या दूध देने वाली गाय को एक दिन सैक्रिफाइस करके सारे अंडे, सारा दूध हासिल नहीं करना चाहेंगे. Modify thinking. Okay, let's keep on improving the system so the cow will keep on giving you higher level of milk. Let's keep on thinking and improving the system so the chicken will keep on giving you golden eggs. Modify thinking. Third level and third loop learning की मैं बात नहीं करता हूं. मॉडल आपके सामने है, इसको किसी मैनेजमेंट की किताब से देखिए, पढ़िए, और कैसे फिर ये आपका बिलीफ और वैल्यू सिस्टम इसको ट्रांसफॉर्म करता है, और कैसे फिर एक नई वर्कफोर्स, नॉलेज बेस्ड वर्कफोर्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैं अमूमन कहा करता हूं ना, फैसलाबाद में भी नहीं, फैसलाबाद से बाहर किसी गांव में, देहात के करीब एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल 100% सॉक्स बनाते हैं, 100% सॉक्स बीइंग एक्सपोर्टेड, एंड द कल्चर इनसाइड एक्सीलेंट, वर्कर्स इनसाइड पाकिस्तानी, मैनेजर्स इनसाइड पीपल लाइक यू. थिंग्स कैन बी डन माय डियर स्टूडेंट्स. यस, वी कैन डू इट इन पाकिस्तान. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर ये कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए. पढ़ा था ना आपने, मैनेजमेंट कमिटमेंट पहली प्री रिक्विजिट. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ओपननेस चाहिए उसमें. फाइलें दबाकर बैठने वाले, इंफॉर्मेशन को प्रिजन में रखने वाले नहीं. ओपननेस इन कम्युनिकेशन, राइट इंफॉर्मेशन विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम टू मेक द राइट डिसीजन, एम्पावर्ड डिसीजन एंड रिस्क टेकिंग. थोड़ा सा तो मुझे लिबर्टी दीजिए, मुझे कोशिश तो करने दें. I'll give you a better code, I'll give you a better process, I'll give you a better design. मौका तो दीजिए. बाउंड्रीलेस क्रॉस फंक्शनल टीम. इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर तो एक ही है. आप क्यों डिवाइड करते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, एचआर में, आईटी में? ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बाउंड्रीलेस. किसके लिए काम कर रहे हैं? कस्टमर तो वही है. तो हम ट्रीज को भी गिन रहे हैं. आईटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर ट्रीज हैं, यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और हम ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल भी देख रहे हैं. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एग्री टू डिसएग्री का कल्चर है, विद क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. हम लोगों की टांगें नहीं खींचते, हम आइडियाज की टांग खींचते हैं. वी रिफाइन द आइडिया, वी कुक द आइडिया, वी फ्राई द आइडिया. बिल गेट्स के बारे में मशहूर है, best programmers of his company, they were afraid when they were facing him because he will fry them. अच्छा, कैसे वो he will fry का मतलब ये नहीं कि उसको उड़ा के कोई फ्राइंग पैन में डाल देगा, उसके आइडिया को. तो आइडिया को फ्राई करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बेटर आइडिया, लेटेस्ट आइडिया, फ्यूचरिस्टिक आइडिया होना चाहिए, तभी आप फ्राई कर सकेंगे ना. आपके आइडिया की हीट नहीं, आपके आइडिया की लाइट और हीट. अगर मेरे आइडिया और लाइट, मेरे आइडिया की लाइट और हीट से ज्यादा है, तो यू विल फ्राई मी रिगार्डलेस यू मे बी यंगर टू मी इन एज, इन एक्सपीरियंस. बिकॉज आई बिलीव दैट इन 21st century younger people, they are better in technology. They are faster in speed. They have a better liver of technology. I think they are more passionate and committed, and they are more global. Let's learn. और आखिरी बात यह है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विद शेयर्ड विजन. हम जनरेशन गैप के कायल नहीं हैं. वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर, ट्रांसफॉर्मिंग ईच वन ऑफ अस. सीनियर पीपल ट्रांसफॉर्मिंग द जूनियर वंस. Elder people giving a helping hand to the new people. Transforming leadership culture. ये कंपोनेंट्स हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेसर पीटर सेंजे की, और खासतौर पर ये किताब 5th डिसिप्लिन की, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में. कंसेप्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट है, फिलोसॉफिकल है, लेकिन ब्यूटीफुल है. खरीदिए इस किताब को, पाकिस्तान में अवेलेबल है. नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड
टेक्नोलॉजी की चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक आइडियाज आपको जरूर मिल जाएंगे। और इसका एक एक सफा जो है, इट विल रिक्वायर यू फॉर मंथ्स टू कम एंड years to come to keep on thinking and to keep on implementing. But it works. He says, Professor Peter Senge of MIT, he says, people discard their old ways of thinking and the standard routines they use for solving problems or doing their job in learning organization. ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की कि लोग willingly, ठीक है जी, कल तक ये वायर्ड फोन का जमाना था, आज वायरलेस का जमाना है, वी विल स्विच। कल तक हम टाइपराइटर से टाइप करते थे, टुडे वी विल टाइप ऑन वर्ड प्रोसेसर। कल तक हम फाइलों में छुपा के रखते थे, आज हम ईमेल करते हुए लेट इट बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन, राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। वी विल इंप्रूव। मेंबर्स विल थिंक ऑफ दैट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है ना। Members think of all organizational processes, activities, functions, and interactions as a part of system of interrelationship, interdependencies. मैंने कहा था ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से तो उसका कोई फायदा नहीं। हां, ये सब मिलकर एक इंसान की जिंदगी को बचाएं। तो जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सिस्टम मिलकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और आउटपुट सबकी एक डायरेक्शन में फोकस है। नंबर 3, क्या कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर सेंजे? पीपल ओपनली कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस वर्टिकल एंड अक्रॉस हॉरिजेंटल बाउंड्रीज। यानी पीयर बेस्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि हायरार्किकल और वर्टिकल कम्युनिकेशन, विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। असल चीज तो ये है, कहीं मैंने बॉस से डिसएग्री किया तो इंक्रीमेंट तो नहीं रुक जाएगी। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में फिर ये फियर नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मौका मिलता है अपने डिपार्टमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं, ये कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक तो ना, यस सर, बॉस कल्चर, बॉस इज ऑलवेज राइट। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है, एनीबडी कैन गिव एन आइडिया, आइडिया कैन बी क्रिटिसाइज, नॉट द पर्सन, विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, तुमने मुझसे डिसएग्री किया, मैं तुम्हें इम्तिहान में देखूंगा, प्रोफेसर कहा करते थे ना। अब तो वैसे इम्तिहान बहुत सारे इदारों में सेमेस्टर सिस्टम हो गया। सेमेस्टर सिस्टम में फिर आप कहते हैं जी असाइनमेंट, क्विज, फलां फलां फलां, एंड टर्म एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले, लेट इट बी नोन स्टूडेंट हैज द राइट टू मेक अ लाउड ह्यू एंड क्राई। ओपन कम्युनिकेशन इसी का नाम है ना। चौथी चीज क्या है? देयर एग्जिस्ट ए शेयर्ड विजन। ये मुल्क, ये डिपार्टमेंट, ये कस्टमर, ये रिसोर्सेज हम सब के हैं। शेयर्ड विजन विच एवरीवन एग्रीज ऑन। और पांचवी बात, पीपल सबलाइम। जरा गौर से सुनिए इसे। पीपल सबलाइम देयर पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड देयर डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट टू वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ फिर वो सबलाइम करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखती है। देखिए ना, इससे बेहतर और सूरत क्या हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर सेंजे, नॉलेज मैनेजमेंट के कल्चर को डेवलप करने के लिए और नॉलेज से बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करने के लिए, he says this is one of the best model which he described in the book Fifth Discipline, and then he implemented this idea। बल्कि उन्होंने तब एक सेंटर बनाया हुआ है, सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, and he goes around in the world, he presents his model, and many organizations are looking towards him how to implement, because if it works, if it increases the performance, if it increases the productivity, if it brings profitability, if it gives more value to the investors,
Let's go for it. और फिर learning or knowledge which is futuristic, it keeps you and keeps on giving you opportunities in future, then who else will not require it? तो ये आइडिया जो प्रोफेसर पीटर सेंजे ने प्रेजेंट किया, मैंने अर्ज किया था ना, इट्स एन आइडियल मॉडल, बट रियलिस्टिकली यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड कीप ऑन लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड कीप ऑन लुकिंग हाउ टू गो हायर एंड हायर एंड हायर. देयर इज नो एंड टू लर्निंग. देयर इज नो एंड टू इनोवेटिव आइडियाज. कहते हैं जी कि प्रोफेसर आइंस्टाइन ने ओनली 10% ऑफ द ब्रेन यूज किया, और उस जमाने में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं. आज आपके पास इंफॉर्मेशन को, डाटा को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी भी है, एंड यू कैन शेयर इट विद ऑल द पीपल, ऑल द वर्कर्स, ऑल द peers, all the colleagues, all the associates, all the community member of the organization. That includes customers, suppliers, vendors, managers, everybody. So let us develop then a model close to it, if not ideal, maybe real. कैसे होगा? ये उसके 5 कंपोनेंट हैं, 5 डिसिप्लिन है. हर डिसिप्लिन को डेवलप करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा. हर डिसिप्लिन लर्न करना होगा, हर डिसिप्लिन प्रैक्टिस में आएगा. कौन से 5 डिसिप्लिन है? नंबर 1 पर्सनल मास्टरी, नंबर 2 मेंटल मॉडल्स, नंबर 3 शेयर्ड विजन, नंबर 4 टीम लर्निंग, नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स सिस्टम्स थिंकिंग. लेट्स फोकस देन स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल. मैंने कहा था ना, नॉलेज में मेरे और आपके लिए क्या है? ये तो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है. पर्सनल कैपिटल. पर्सनल कैपिटल से ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल हमने लर्न किया. नॉलेज मैनेजमेंट के कोर्स की पूरी थीम यही थी. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में भी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर सेंजे, पर्सनल मास्टरी इज द फर्स्ट रिक्विजिट. उनका कहना यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस लर्न ओनली थ्रू इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स लर्न, देन organizations learn. Individual learning does not guarantee organizational learning. अगर वहां इंडिविजुअल लर्न करेंगे, कल्चर नहीं है. कल्चर किस चीज का? ओपननेस का. कल्चर किस चीज का? इनोवेशन का. कल्चर किस चीज का? शेयर्ड विजन का. कल्चर किस चीज का? टीम लर्निंग का. ऑर्गेनाइजेशन लर्न नहीं करेगी. लेकिन उनका कहना यह है कि देन विदाउट इंडिविजुअल लर्निंग, यानी आप अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बजट के अंदर, ठीक है, आप कहते हैं जी इट इज वेस्टेज. एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम, व्हाई शुड वी मेक एंड टेक केयर ऑफ योर लर्निंग? वी गिव यू सैलरी. इफ यू नीड अनदर कोर्स, गो एंड गेट योरसेल्फ. व्हाई शुड वी पे फॉर इट? प्रोफेसर पीटर सेंजे का कहना यह है कि विदाउट लर्निंग नो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग विल अकर. टेक्नोलॉजी विल चेंज, फंक्शनैलिटीज विल चेंज, मार्केट्स विल चेंज, कस्टमर्स विल गो अवे एंड यू विल कीप ऑन स्टैंडिंग देयर. तो फिर हम लर्न करना चाहेंगे कि पर्सनल मास्टरी का जो आइडिया है और जो डिसिप्लिन है, ये तो आपके और मेरे लिए पर्सनल लेवल पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है. क्या ख्याल है ये? नहीं, ये नहीं. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तो चलिए ठीक है, सीईओ या हेड ऑफ द मार्केटिंग तय करेगा तो कुछ बात बनेगी. लेकिन मेरे और आपके लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के इस डिसिप्लिन की पर्सनल मास्टरी भी तो इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब यह हुआ कि पर्सनल मास्टरी मीन्स ए स्पेशल लेवल ऑफ पर्सनल प्रोफिशिएंसी, ए स्पेशल लेवल ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी, एंड ए स्पेशल लेवल ऑफ पर्सनल स्किल सेट which you would learn and acquire either through the organization or you do it on your own. But according to Professor Peter Sanjay, it's good, and that organization would be a learning organization which takes care of the learning of their individuals, which makes those people master of their own, which gives them self-empowerment, which gives them self-direction,
It's a very important concept and a very important discipline. We will continue this personal mastery in detail. इसलिए कि learning organization पर you will find courses all together, theory and practice, standalone. But in knowledge management, because learning and knowledge are directly related, knowledge cannot grow without learning. So we would like to see then these 5 disciplines as described by Professor Peter Sanjay, but we will look personal mastery in a bit more detail. Think about it. What's in it for you? What Professor Peter Sanjay is saying, personal mastery, and how you become master of your destination, master of your journey. So your company should also become master of its products in the market, the global market. My dear students, will continue on. In the last session, we will conclude what kind of organization you would like to see on the basis of knowledge. When the knowledge is in the stock, and knowledge is in the flow, and knowledge brings profitability and productivity. You learn and your organization learn. Thank you very much for your attention, and I'll see you in the next session. और वो कौन सा होगा? Session number 45, the last one. And the learning and knowledge would go together hand in hand. Until the next session, which will be the last one, and come ready intellectually, mentally, physically, emotionally, spiritually. And all these learning should be put together, so your personal capital and your personal market value must grow, so grow the value of the organization. Assalamu alaikum and Khuda Hafiz until the next session.